Hello, my dear students. We'll take the next class of topic cell. In our previous classes, we had started the topic cell. Cell is the smallest structural and functional unit of the life. The cell is made up of three components, that is cell membrane, nucleus and cytoplasm. Cell membrane, it is the outermost covering of the cell. Cell membrane is the living component of the cell. The cell membrane is made up of lipids and proteins. It maintains the composition of the cell because it is the boundary of the cell. The cell membrane, it distinguishes the one cell from another cell. We have discussed in detail the cell membrane, how it maintains the composition of the cell. And the second component of the cell is nucleus. It is the largest structure that is present in animal cell. Nucleus is present in the center of the animal cell. This nucleus contains the genetic material, and the nucleus controls all the cellular activities. So nucleus is known as headquarter of the cell. यहां तक का हमारा डिस्कशन हो गया था और अब हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे, इट इज व्हाट साइटोप्लाज्म. ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर है साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म, it is made up of two components, that is what cell organelles and cytosol. Cytosol, it is the liquid component that is present in the cell membrane outside the nuclear membrane. Here, that is what the cytosol. And in the cytosol, the little structures are present known as cell organelles or the compartments of the cell. Cell organelles, these are the small structures. They are present in the cytoplasm or the cytocell. Each cell organelle have its unique functions, and there are different cell organelles. They perform their different functions. So it is because of the cell organelles a cell performs many functions. So बेटा आपको ये एक 1 मार्क का एक important question पूछ लिया जाता है कि why a cell performs many functions. Your answer is that is because of cell organelles. A cell have little structures known as cell organelles. They have their unique functions, and because of the cell organelles, a cell is able to perform the many functions. The cell organelles, they are of three types. They are of three types. That is double membrane bound cell organelles, single membrane bound cell organelles,
and membraneless cell organelles. The double membrane bound cell organelles are nucleus, second one mitochondria, third one plastids, and the single membrane bound cell organelles are endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, and fourth one vacuoles, and the membraneless cell organelles are ribosomes. न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज में डाला गया है, बट हम न्यूक्लियस को जनरली सेल ऑर्गेनेलीज में ना डाल के सीधा बोल देते हैं इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। ऐसा बोलो तो सही है, आप सेल ऑर्गेनेली बोलो तो सही है, नथिंग रॉन्ग। न्यूक्लियस को अलग से इसलिए रखा गया है बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़, इसीलिए कुछ बुक्स के अंदर उसको सेल ऑर्गेनेलीज में न डाल के एक अलग से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब बेटा मैं आपको यहां पर ये एक फील देना चाह रहा हूं, a cell is able to perform many functions, that is because of various cell organelles. How it is? तो सुनो, nucleus it is the largest structure present in the cell. It contains the chromatin reticulum, say genetic material. With the help of that, it controls all the cellular activities. So it is the boss of the cell. It is the headquarter of the cell because all the cellular activities are controlled by the nucleus. ध्यान रहे हमारे आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। जब टॉपिक हमारा ये वाला खत्म होगा तो विल कम टू द टॉपिक दैट सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो हैं दे आर नॉट हैविंग the well developed true nucleus. We are the animals, we come under the category of eukaryotic organisms. We have eukaryotic cell and we have well developed the true nucleus. Mitochondria, it is the powerhouse of the cell. Because for all the cellular activities the energy is required, the energy is needed, that energy is released by mitochondria. So mitochondria is known as powerhouse of the cell. तो mitochondria नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो सेलुलर एक्टिविटीज वो हो नहीं पाएंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन है। प्लास्टिड्स दे आर प्रेजेंट in plant cell only. अब प्लास्टिड्स भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट विच हैव अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसका फंक्शन है टू कैरी ऑन द फोटोसिंथेसिस।
अब बेटा अगर धरती पे फोटोसिंथेसिस ना हो तो हम नहीं जी पाएंगे, ये जीवन नहीं चल पाएगा। Because it is the plants that have the characteristic to convert the solar energy into chemical energy of the food. And the plants are able to do it. They are able to carry out photosynthesis because they have chloroplast. अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो तो इस धरती के ऊपर जीवन पॉसिबल ही नहीं है। ये बात कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ओके, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ, सन सस्टेन्स द लाइफ ऑन अर्थ, बट सन विदाउट, नॉट विदाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक छोटी सी स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं। अब ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा होगा, ये यहां लिखा हुआ है, सोच से निकलता है। टमाटर का एक पर्टिकुलर कलर होता है, गाजर का एक पर्टिकुलर कलर होता है, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का अलग अलग कलर्स होते हैं। किसके कारण? बिकॉज ऑफ द प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ जाते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज में, जिसमें पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के कंपोनेंट्स है, कंपार्टमेंट्स है, उनको अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर रखा है। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल and the endoplasmic reticulum, it helps in the transportation within the cell. बाकी के बहुत सारे फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, मैं आपको अभी एक एक दो फंक्शन बोल के आपको एक फील देना चाह रहा हूं कि व्हाई ए सेल इज एबल टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस। देन गोल्गी बॉडीज, whatever the materials which are synthesized by endoplasmic reticulum, Golgi bodies उनको पैक करती है, मॉडिफाई करती है और फिर विद इन द सेल उसका इंटरनल ट्रांसपोर्ट करती है। गोल्गी बॉडीज का मेन फंक्शन ये है। और गोल्गी बॉडीज का दूसरा फंक्शन है दे रिलीजेज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स दे आर हैविंग वेरियस एंजाइम्स। लाइसोसोम्स का काम है सेल के अंदर सफाई करना, क्लीनिंग करना, सेल के जो वॉर्न आउट पार्ट्स है उनको बाहर निकालना। वैक्यूल जस्ट गोल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एक सैप है। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स हैं, वो सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। कुछ एनिमल्स के अंदर एज ए स्टमक काम करती है और कुछ एनिमल्स के अंदर ये एज ए एक्सक्रेटरी ऑर्गन काम करता है। देन मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज, इसमें आ जाएगा राइबोसोम्स। Ribosomes are the smallest structures, they are present in the cell. They helps in protein synthesis. तो मैंने क्या डिस्कस किया? The cell organelles, they are of three types: double membrane bound cell organelles, single membrane bound cell organelles and membraneless cell organelles. और अलग अलग सेल ऑर्गेनेली के फंक्शन क्या क्या है? सबके फंक्शंस अलग अलग है। इन सब के फंक्शंस अलग अलग है और ये सारे फंक्शंस सेल के हैं। सो सेल इज एबल टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस, दैट इज बिकॉज ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक के जरिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि सेल विच इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, it is made up of three components:
पहला और दूसरा कंपोनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, तीसरे कंपोनेंट को हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम एक एक कंपोनेंट का एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेटा आज न्यूज़पेपर्स के अंदर ये सर्कुलर आ गया है कि जब लॉकडाउन के कारण जब तक स्कूल बंद रहता है तब तक कितना सिलेबस बच्चों का होना चाहिए था, उतना सिलेबस बच्चों को टीचर्स की हेल्प से, बुक की हेल्प से, ऑनलाइन क्लासेस से करना है। लॉकडाउन के बाद में व्हेन द स्कूल्स विल बी रीओपन तो सिलेबस वहां से आगे बढ़ेगा कि उस समय जहां से सिलेबस आगे बढ़ना है। सो प्लीज यू आर एट होम, ओके, यू आर सेफ, बट प्लीज डू वर्क, काम करते रहो और डेली बेसिस पे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू।